Class 10, Class 10 Political Science, Class 10 Political Science Chapter 6, Class 10 Political Science Chapter 6, चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल की बात करते हैं। यहाँ पे राजनीतिक दल की बात करते हैं। तो राजनीतिक दल यहाँ पे आपको है तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC। AITC ये आपको पहले वाले थीम पढ़ चुके थे। AITC इसमें देखिए ये कहा गया कि लॉन्च AITC लॉन्चड 1 जनवरी 1998 under the leadership of Mamata Banerjee, recognized as a national party in 2016. The party's symbol is flower and grass. Flower and grass, secularism and federalism, has been in power in West Bengal since 2011. Also has a presence in Arunachal Pradesh, Manipur, and Tripura. In the general election held in 2019, it got 4.07% votes and on 22 seats, making it the fourth largest party in the Lok Sabha. बहुजन समाज पार्टी BSP की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी BSP की बात BSP बहुजन समाज पार्टी BSP बहुजन समाज पार्टी BSP की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी BSP 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 की बात करते हैं कि फॉर्मेड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसी राम seeks to represent and secure power for the Bahujan Samaj, which include the Dalits, Adivasi, OBCs, and religious minorities. Draws inspiration from the ideas and teaching of Sahu Maharaj, Mahatma Phule, Periyar, Ramaswamy Naicker, and Baba Saheb Ambedkar. Stands for the cause of securing the interest and welfare of the Dalits and oppressed people. It has it has its main base in the state of Uttar Pradesh and substantial presence in neighboring states like Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttarakhand, Delhi, and Punjab. Formed government. Formed government in Uttar Pradesh several times by taking the support of different parties at different times. In the Lok Sabha election held in 2019, it polled about 3.63% votes and secured 10 seats in Lok Sabha. अब यहाँ पर देखिए बहुजन समाज पार्टी देखिए स्वर्गीय कांसीराम देखिए स्वर्गीय कांसीराम के नेतृत्व 1984 में गठन स्वर्गीय कांसीराम के नेतृत्व 1984 में गठन बहुजन समाज जिसमें दलित आदिवासी पिछड़ी जातियाँ और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल है के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा। पार्टी साहू देखिए पार्टी साहू महाराज महात्मा फुले पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। अलग अलग पार्टियों से अलग अवसरों पर देखिए अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश 4 बार सरकार बनाई। इस दल को 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 4% वोट मिले, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी देखिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जिसको हम बोलते हैं फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द एर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ बाय रिवाइविंग द एर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ फॉर्मेड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951 wants to build a strong and modern India by drawing inspiration from India's ancient culture and values, and then their Upadhyay's ideas of integral humanism and Antodaya. Nationalism or Hindutva is an important element in its conception of Indian nationhood and politics. Once wants full territorial and political integration of Jammu and Kashmir with India, a uniform civil code, a uniform civil code for all people living, a uniform civil code for all people living in the country, irrespective of religion, and ban on religious conversion and ban on religious conversion. It support base increase substantially and in the 1990s decade in 19 its support base increased substantially in the 1990s decade, early limited to north and west and to urban area. The party expanded its support in the southeast and northeast and to rural areas. Came to power in 1998 as the leader of National Democratic Alliance (NDA), has the leader of the National Democratic Alliance (NDA), including several regional parties, emerged as the largest party with 303 members in 2019 Lok Sabha election. Currently leads the ruling NDA government at the center. अब देखिए भारतीय जनता पार्टी पुराने भारतीय जनसंघ को जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया था पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल दीनदयाल उपाध्याय के विचार समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इस अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। देखिए यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफ़ी व्यापक हुआ। पहले देश उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक ही सिमटी रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक में दक्षिण पूर्वोत्तर तथा देश के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बढ़ाया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई। गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में 282 सीटें जीतकर 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में 282 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। अभी केंद्र में शासन करने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यही कर रहा है। अब आगे यहाँ पे देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको हम लोग सीपीआई बोलते हैं। देखिए फॉर्मेड इन 1925 believes in Marxism, Leninism, and secularism and democracy, opposed to the forces of sectionism and communalism. Except parliamentary democracy has a means of promoting the interest of the working class, farmers, and the poor. Became weak after the split in the party in 1964 that led to the formation of the CPIM. Significant presence in the states of Kerala, West Bengal, Punjab, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. Its support base had gradually declined over the years. It secured less than 1% of votes and two seats in the 2019 Lok Sabha election.
advocates the coming together of all left parties to build a strong left front। तो यहाँ देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको सीपीआई बोलते हैं, सीपीआई 1925 में गठित है। 1925 में गठित मार्क्सवाद लेनिनवाद धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों के विरोधी। यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने के एक उपकरण मानती है। यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने के एक उपकरण मानती है। 1964 की फूट जिसमें माकपा इससे अलग हुई के बाद इसका जनाधार सिकुड़ता चला गया। और लेकिन लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी भी ठीक-ठाक स्थिति है। बाहर इसका समर्थन धीरे-धीरे कम होता गया है। 2014 लोकसभा चुनाव में इसे 1% से कम वोट और 1 सीट हासिल हुई। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों के साथ लाने के पक्षधर है। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को साथ लाने का पक्षधर है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की बात किया गया है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट मतलब क्या? तो सीपीआईएम की बात, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट मतलब सीपीआईएम की बात करते हैं। सीपीआईएम देखिए फाउंडेड इन 1964, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म। 1964 में स्थापित मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था। देखिए 1964 में स्थापित मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था रखता था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जिसको सीपीआईएम बोलते हैं। आगे यहाँ देखिए क्या लेनिनिज्म, देखिए लेनिनिज्म यहाँ पर आपको क्या है कि Marxism, Leninism support socialism, secularism and democracy and oppose imperialism and communalism. Accept democratic election has a useful and helpful means for securing the objective of socio-economic justice in India. Enjoy a strong support in West Bengal, Kerala and Tripura, especially among the poor, factory workers, farmers, agricultural laborers, and the intelligentsia critical of the new economic policies that allow free flow of foreign capital and goods into the country was in power in West Bengal without a break for 34 years. Was in power in West Bengal without a break for 34 years. In the 2019 Lok Sabha election, it won about 1.75% of votes and 3 seats. अब यहाँ देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम जिसको बोलते हैं 1964 में स्थापित मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता के विरोधी। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया कि देखिए यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनाव को सहायक और उपयोगी मानती है। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतीहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़। यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचक है। पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्षों शासन में रही। 2014 चुनाव में इसने करीब 3% वोट और लोकसभा की 9 सीटें हासिल की। लोकसभा की आपको 3 सीटें आपको हासिल की एंड 3 सीट्स जिसे बोलते हैं। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको हम इंक बोलते हैं, देखिए यहाँ पे इंक जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखिए पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, फाउंडेड इन 1885 एंड हैज experienced many spills, played a dominant role in Indian politics at the national and state level for several decades after India's independence. Under the leadership of Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern secular democratic republic in India. Ruling party at the center till 1977. इंडियन नेशनल कांग्रेस आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है और यह दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है। 1885 में गठित इस दल में कई बार विभाजन हुए हैं। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में
जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास 1971 तक लगातार और फिर 1980 से 1989 तक इसने इसने देश पर शासन किया। 1989 के बाद इस दल के जन समर्थन में कमी आई। उसके बाद यहाँ देखिए एक आपके यहाँ पर कहा गया स्टेट पार्टीज की भी आपके यहाँ पर देखिए आपको एनसीपी भी है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए स्टेट पार्टीज की बात यहाँ पर आपको स्टेट पार्टीज से पहले आपके यहाँ पर कहा गया इसी कांग्रेस का आपके यहाँ पर है। एंड देन देखिए फ्रॉम 1918 टू 1989 आफ्टर 1989 its support declined but it continues to be present throughout the country, cutting across social division. A centrist party, neither rightist nor leftist in its ideological orientation, the party espouses secularism and welfare of weaker sections and minorities. The Inc. support new economic reform, but with a human face. Leader of the United Progressive Alliance UPA government from 2004 to 2019. In the 2019 Lok Sabha election, it won 19.5% votes and 52 seats. अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जन समर्थन कमी आई और पर अभी ये पूरे देश और समाज के सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए हैं। अपने वैचारिक रुझान में मध्यम मार्ग देखिए मध्य मार्ग, ना वामपंथी ना दक्षिणपंथी, इस दल ने धर्मनिरपेक्ष और कमजोर वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है, पर इस बात को लेकर भी सचेत है कि इन नीतियों का गरीब और कमजोर वर्गों पर बुरा असर न पड़े। 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व 2014 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी पराजित हुई और अभी लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसको एनसीपी बोलते हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसको एनसीपी बोलते हैं। देखिए फॉर्मेड इन 1999 फॉलोइंग ए स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी एस्पाउसेस डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म, equity and social justice and federalism. Wants that wants that high offices in government be confined to natural born citizens of the country. A major party in Maharashtra and has a significant presence in Meghalaya, Manipur and Assam. A coalition partner in the state of Maharashtra in alliance with the Congress since 2004. A member of United Progressive Alliance in 2019 Lok Sabha election. It won 1.4% votes and 5 seats. यहाँ देखिए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी देखिए क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में यह पार्टी बनी। कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में यह पार्टी बनी। लोकतंत्र गांधीवादी धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में आस्था। यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ यह मेघालय, मणिपुर और असम में भी ताकतवर है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में भागीदार 2004 से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में साझेदार है। फिर आपको आगे यहाँ पे स्टेट पार्टीज की बात कर लीजिए। देखिए राज्य की जो पार्टियां होती हैं उनकी भी थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। क्षेत्रीय दल, स्टेट पार्टीज मतलब जिसको हम क्षेत्रीय दल अंग्रेजी में हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहा कि अदर देन दी 7 पार्टीज, मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड बाय इलेक्शन कमीशन हैज स्टेट पार्टीज। दीज आर कॉमनली रेफर्ड टू हैज रीजनल पार्टीज। Yet, these parties need not to be regional in their ideology or outlook. Some of these parties are all India parties that happen to have succeeded only in some states. Parties like the Samajwadi Party and Rashtriya Janata Dal have national level party organization with units in several states. Some of these parties like Biju Janata Dal, Sikkim Democratic Front, Mizo National Front,
Mutual National Front and Telangana Rashtra Samiti are concise about their state identity. देखिए क्षेत्रीय दल की बात जो यहाँ पर की गई है, इन 7 पार्टियों के अलावा उपयुक्त 7 पार्टियों के अलावा भी अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राज्य दल देखिए राज्य दल के रूप में मान्यता दी है। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है, पर जो ये ज़रूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या नज़रिए में ये पार्टियाँ क्षेत्रीय ही हों। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल पर है, उन्हें कुछ क्षेत्रों में ही सफलता मिल पाई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक गठबंधन है। राजनीतिक समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है। और इनकी कई राज्यों में इकाइयाँ भी है। बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी पार्टियां अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज़्यादा संपन्न हुई है। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुई है। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए हैं। इन दलों के ब्यौरे के लिए अब आगे हम देखें क्या कि कंसाइसनेस, देखिए ओवर द लास्ट 3 decades द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस पार्टीज हैज एक्सपेंडेड। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन politically more and more diverse. No one national party is able to secure on its own a majority in the Lok Sabha until 2014. देखिए has a little the national parties are compelled to form alliance with state parties since 1996. Nearly every one of the state parties has got an opportunity to be a part of one or the other national level coalition government. This has contributed to the strengthening of federalism and democracy in our country. See the map on the next page for detail of these parties. तो यहाँ पे एक मैप आपको शो किया गया। इस मैप को आप देखिए, यहाँ पे जो आपको मैप शो किया गया है, देखिए ये जो मैप आपके यहाँ पर शो किया गया, भारत में रीजनल पार्टीज जो सब है, रीजनल पार्टीज इन इंडिया, भारत में जो रीजनल पार्टी हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके मैप यहाँ पर शो किए गए हैं। तो ऊपर में जो आप यहाँ पर मैप देख रहे हैं, ऊपर में जो आप मैप देख रहे हो वो सब आपको भारत की रीजनल पार्टी है। तो सबसे यहाँ पर बात कर लेते हैं हम जम्मू कश्मीर की। देखिए जम्मू कश्मीर जो आपके यहाँ पर पार्टियाज हैं, जम्मू जम्मू कश्मीर कई सारे पार्टी हैं आपकी इसमें। देखिए जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी स्थापना 1999 में आपको हुई थी। और जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी वाज, जिसकी आपको फिर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इस तरह के बहुत सारे सभी राज्यों में अपनी अपनी पार्टियां, अपनी अपनी चीज़ें हैं। तो जो जिस राज्य के हैं वो अपने उस राज्य की जो पार्टियां हैं उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे हम बिहार की बात करते हैं। बिहार में देखिए कौन कौन आपको बहुत ही अच्छे अच्छे आपको हैं बिहार की। तो यहाँ पर जो आप बिहार देख रहे हैं, यहाँ पर आपको जो ये थोड़ा सा जो आपको बिहार हो गया, इसकी बात यहाँ पर हम कर लेते हैं। ये बिहार की पार्ट को देखिए, बिहार में जो मुख्य रूप से आपको यहाँ पर हो गए हैं वो आपको इस प्रकार है। देखिए बिहार में आपको सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए क्या जनता दल है, जिसका निशान आपको तीर छाप है, और इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी। जनता दल यू बोलते हैं, 1999 इसकी स्थापना हुई थी। और ये लोक जनशक्ति पार्टी भी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की, जिसका स्थापना 2000 ईस्वी में आपको हुई थी। और राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल जिसको झारखंड में भी ये आपको है, और 1998 में इसकी स्थापना आपको हुई थी। उसका राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिसका चिन्ह आपको पंखा छाप है, 2013 में इसकी स्थापना आपको हुई थी। अब आगे यहाँ पर चलते हैं। देखिए इस तरह की बहुत सारी पार्टियां हैं, तो आप वो अपने देख सकते हैं। अब फिर हम आगे यहाँ पर आते हैं। देखिए राजनीतिक दलों की चुनौती की बात करते हैं। राजनीतिक दलों के लिए क्या चुनौतियां आपको उसको मिल रही है। देखिए चैलेंजेज टू पॉलिटिकल पार्टीज की बात कीजिए। चैलेंजेज टू पॉलिटिकल पार्टी मतलब राजनीतिक दलों की चुनौतियां देखिए यहाँ पर। देखिए वी हैव सीन हाउ क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी।
ये देखिए यहाँ पे जो कहा गया, वी हैव सीन हाउ क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी सिंस पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज नेचुरल, देखिए इट इज नेचुरल दैट पीपुल ब्लेम पार्टीज फॉर वाट एवर इज रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपुल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फेक्शन। देखिए ऑल ऑफ द वर्ल्ड, देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपुल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फेक्शन विद द failure ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू परफॉर्म देयर फंक्शन वेल। देखिए दिस इज द केस, देखो दिस इज द केस इन आवर कंट्री टू। पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन एंड criticism has focused on four problem areas in the four problem areas in the working of political parties. Political parties need to face and overcome these challenges in order to remain effective instrument of democracy। मैं आपको आगे यहाँ पे कहता है क्या, देखिए हमने देखा कि देखिए आपको राजनीतिक दलों की जो चुनौतियाँ कि हमने देखा कि लोकतंत्र के इस कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियाँ कितनी महत्वपूर्ण है। चूँकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप, इसलिए स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराएँगे। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज़ नाराज़ रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते हैं। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज़ रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते हैं, और इसके लिए राजनीतिक दल को ही दोषी ठहराते हैं। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज़ रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात लागू होती है। आम जनता की नाराज़गी और आलोचना आपको राजनीतिक राजनीतिक दलों के कामकाज के चार पहलुओं पर केंद्रित रही है। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए। फिर आगे यहाँ पर आपको कहता है क्या कि द फर्स्ट चैलेंज इज, यहाँ पे जब को कहा गया, देखिए द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। देयर इज ए टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवार्ड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। Parties don't keep membership register, don't hold organization मीटिंग एंड don't conduct internal election regularly. Ordinary members of the party don't get sufficient information on what happens inside the party. They don't have the means or the connection needed to influence the decisions. Has a result the has a result results has a results has a results the has a results has a result the leaders assume they get the power to make decision in the name of the party, since over or few since over तो फिर आपको यहाँ पर जो कहा गया कि since over or few leaders exercise paramount power in the party, those who disagree with the leadership find it। तो यहाँ पे एक आपको कहा गया है क्या कि पहली चुनौती है कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। देखिए इस सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई कि यह सारी ताकत एक या कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। पार्टियों के पास ना सदस्यों की खुली सूची होती है और ना नियमित रूप से सांगठनिक बैठकें होती। इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते हैं। कार्यकर्ता से सूचनाओं को जुटाते हैं। कार्यकर्ताओं से सूचनाओं का साझा भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहते हैं कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। उसके पास ना तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है और ना ही कोई मध्यम वर्ग और ताकत होती है। देखिए परिणामस्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। ये चूँकि कुछ ही नेता के पास ही अपनी अचल संपत्ति होती है, और इसलिए जो उनसे असहमत होते हैं उनका पार्टी में टिकट रह पाना मुमकिन नहीं है। फिर यहाँ पे कार्टून दिया गया। देखिए कार्टून जो आप यहाँ देखिए बर्लुस्कोनी का कार्टून दिया गया है। बर्लुस्कोनी आपके यहाँ पर देखिए बर्लुस्कोनी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। देखिए ही इज आल्सो वन ऑफ द लीडर ऑफ
अफरोजा अफरोजा अ, फिर इटालियन ब्रेक इटाली हाँ इटाली यहाँ पे जो कहा गया क्या इटालिया फाउंडेड इन 1933 हिज कंपनी ऑन टीवी सेट्स टीवी सेट्स हिज कंपनी ऑन टीवी चैनल्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट publishing the most important publishing company a football club AC Milan and a Burke this cotton was made during the last election। देखिए यहाँ पर जो कहा गया उसको देखो जो बुर्लुस्कोनी इटली के प्रधानमंत्री थे वह इटली के बड़े व्यवसायियों में से एक थे। वे 1997 में गठित फौजो इतिहास के नेता फौजो इतिहास फौजो के एक हैं वे 1997 में गठित फौजा इतालिया एक नेता हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया है उनकी कंपनी उनकी कंपनी देखिए यहाँ पर उनकी कंपनी कई टीवी चैनल सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रकाशगिरी एवं फुटबॉल क्लब एक मिलान करने जिनको फुटबॉल क्लब बैंक की मालिक कहा गया कार्टून पीछे जब दिखाया गया था। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या है कि एक महिला है देखिए दमन दर महिला को पर्याप्त because why don't parties give enough ticket to women? It's is what a party are due to the national democracy। देखिए दमन महिलाओं को पर्याप्त टिकट क्यों नहीं देते दल जो आपके यहाँ पर दल महिलाओं को पर्याप्त टिकट क्यों नहीं देता है क्यों नहीं देता है क्या इसका आर्थिक लोकतंत्र की कमी होगी। फिर कहता है कि दल महिलाओं को पर्याप्त टिकट क्यों नहीं देता है क्या इसका कारण आंतरिक लोकतंत्र की कमी होगी। अब आगे यहाँ पे कहता है तो आगे यहीं तक आपको रखिए उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं अगला जो पेज आपके यहाँ पर है इसके बाद मोटा भाई के जस्ट बाद जो आपका है वहाँ पर देखेंगे ये आपको पेज नंबर नहीं है 14।